All right. Thank you everyone for joining today's session. And today's session is all about apraxia. So most of the parents in last session has asked about like what is apraxia and a separate session for apraxia. So today we have Krishna ma'am who is going to just walk us through like what is apraxia and what's the, I mean, how its impact affects speech and overall development. So we'll discuss about this today. And I request other people to be on mute because it's adding some issue. Yes. Yeah. So over to you, ma'am. Yeah. Shall I take it over? Yeah. Yeah. Sure. You can continue. Just adjustment. Okay. Hello everyone. I'm Krishna Kumari, language therapist based out of Noida. So we have done quite a few webinar in previous months. I guess this should be the fourth one if I'm not wrong, or the fifth one, maybe fourth or the fifth. So today's topic is apraxia. All right. So why we choose this one? It is we are exclusively in ASD category as of now in terms of language and communication intervention. Second, there were lots of parents who had this issue related to apraxia. So although it's a very small problems faced by the ASD kids, but it's a very important one. बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें उस चीज को कैसे पिन पॉइंट करें और उसको हम कैसे ट्रीट करें. सो दिस इज द रीजन वी हैव टेकन अप अप्रैक्सिया टुडे. सो अगर अप्रैक्सिया देखें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है. ठीक है, अभी मैं हिंदी में कर रही हूँ. If the crowd is of English, please let me know, or else I can translate meanwhile whenever I get time the matter in English. But flow will be in Hindi. Am I right, Mr. Pramod? Yeah. Right. Because as of now, no one has said like they want So specifically English. I'll put them in the chat box so that I'll switch the language. That is not an issue. But as of now, we'll do it in Hindi. Keyword will be in English, and the explanation will be in Hindi. Yeah. All right. Yeah. So when you apraxia, first and the foremost thing we need to get, even before getting to the uh, proper condition apraxia, it's very misdiagnosed condition. जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो less than 5 to 10% cases come to me who already know that the child have apraxia. Child or along with any comorbid condition, because childhood apraxia is never a single condition, it's always a comorbid condition. Comorbid condition का मतलब होता है कि वो एक बड़ी बीमारी के साथ एक छोटी सी कंडीशन में वो रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाईली मतलब वो उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द अप्रैक्सिया की एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में का मतलब ये नहीं कि उससे बहुत ज्यादा हमें परेशानी हो रही है, बट हाँ, हम जो चीजें करना चाहते हैं उसमें इसके कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं. तो अप्रैक्सिया जो होता है, जो जब आप किसी को बोलोगे कि किसी बच्चे को Okay, there was something in the chat box, sir. You can see that. I don't know how to open Yeah. I'll address that. No, you continue. So apraxia is basically कि जब सिर्फ अप्रैक्सिया बोलते हैं, इट्स डिफिकल्टी इन मेकिंग अ वॉलंटरी मोटर मूवमेंट ऑन डिमांड, राइट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैक्सिया जब किसी को होगा, तो जब हम जैसे आप बैठे हो सामने, आपके टेबल के पे पेन रखा और किसी ने बोला कि हमें पेन उठा के दे दो, आपने दे दिया, बट जिस भी पर्सन को अप्रैक्सिया होगा उनको वो पेन सामने रखा है, उनको पेन भी पता है, उनको पता भी है क्या करना, बट उनकी मोटर प्लानिंग ऐसी होगी कि वो पेन उठा के आपको नहीं दे पाएंगे. वो हाथ बढ़ाएंगे, पेन की जगह कुछ और उठा लेंगे, पेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, पेन से आगे चले जाएंगे.
तो ऐसे करके ना उनकी जो मोटर मूवमेंट होती है वो उनके कंट्रोल में नहीं होती है। प्लानिंग जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, उनको पता है क्या करना है, बट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बीच में ना वो फासला होता है। तो वो जो चैनल हमारे ब्रेन में है कि इंफॉर्मेशन गई, प्रोसेस हुई, फिर उस ब्रेन के उस पार्ट ने इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन पे भेजा, लाइक टच और द प्रोप्रियोसेप्टिव और क्या कहते हैं डिफरेंट मसल्स। यस, विल कम टू द अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच ग्रेजुअली। तो ये हो गया अप्रैक्सिया कि जब आप कुछ भी वॉलेंटरी मूवमेंट ऑन डिमांड करने बोले तो वो नहीं होता है क्योंकि मोटर प्लानिंग डिफिकल्टी होती है ओवरऑल। नाउ कमिंग टू द अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच आर टू टाइप्स। एक तो हो गया कि कोई जो पहले से ठीक से बोल रहा था, किसी स्ट्रोक या किसी वजह से उनको ब्रेन में कोई लीजन हो गया तो अप्रैक्सिया हो जाता है। दूसरा जो है कि अप्रैक्सिया ऑफ चाइल्डहुड स्पीच। जिन बच्चों को बचपन से ही अप्रैक्सिया, ये मेजरली देखा जाता है जिन बच्चों की प्लानिंग डिफिकल्टी है, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चों की भी they have a huge planning difficulty. Senses are not organized, they are not integrated, they are not in control. It might be hypersensitive, it might be hyposensitive. तो बीच में ये इनमें भी चला जाता है। दो होते हैं, एक स्पीच का हो सकता है, एक ओरोफेशियल का हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे शब्द बोल देते हैं, बट आप अगर फेशियल जेस्चर्स उनको करने बोलो या इमिटेट करने बोलो तो उनको परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं कि फेशियल जेस्चर्स में भी परेशानी है और साउंड में भी परेशानी है। साउंड जैसे कि मान लो वो अपने मन से कभी कप बोल दिया, लेकिन अगर आपने बोला बेटा बोलो कप, ये क्या है कप, तो ही माइट नॉट बी एबल टू से इट। वन, एक ये होता है इसका सिम्टम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिम्टम कि उनको आप जब भी बोलोगे, उनको आप जब भी कुछ बोलने बोलोगे तो वो तो बोलना तो चाहते हैं, वो अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं बट वो बोल नहीं पाते हैं। आप उनको जैसे मान लो कार बोलने बोलो, वो तो वो जो शब्द अटर करना चाहते हैं वो नहीं होता है। इनके जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं कि जैसे दो सिलेबल्स को, जैसे अगर एक सिलेबल उन्होंने करेक्ट बोल भी लिया तो दूसरा सिलेबल को एक सिलेबल के साथ जोड़ने में वो इनेबल होते हैं। ठीक है, उनकी इनेबिलिटी होती है कि वो नहीं जोड़ पाते हैं। एक और उनका सिम्टम जो होता है कि बचपन में उनकी बैबलिंग बहुत कम होती है। ये बहुत अर्ली चाइल्डहुड सिम्टम है जो हम यूजुअली मिस कर जाते हैं। वो बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही मुश्किल होती है उनके लिए, रिपीटेड अटेम्प्ट करते हैं किसी भी चीज को बोलने के लिए। या फिर उनके सिम्टम हो सकते हैं कि कोई भी मुश्किल शब्द बोलने में उनको हमेशा परेशानी हो। और ये जितनी भी चीजें हैं ये कभी सिम्टम जो होगा कंसिस्टेंट नहीं रहती। वो चीजें हमेशा कभी वही शब्द वो बच्चा कभी बोल सकता है, वही शब्द वो बच्चा ऑन डिमांड कभी नहीं बोल सकता और कभी बोल भी सकता है। तो इनकंसिस्टेंसी इन आर्टिकुलेशन इज ऑलवेज इंडिकेशन ऑफ अप्रैक्सिया, नॉट एग्जैक्टली अप्रैक्सिया, क्योंकि बहुत सारे अलग कंडीशंस भी होता है। तो इंडिकेशन ऑफ अप्रैक्सिया, तो जब भी आपको लगे, या फिर वो फोनेटिक डिसऑर्डर में भी होता है, तो जब भी आपको लगे कि कभी तो बच्चा ये साउंड बोल जाता है, कभी बच्चा ये साउंड नहीं बोलता है, तो यू गेट हिम और as soon as possible with the speech pathologist. so, फिर उनको होता है कि इनकरेक्ट इन्फ्लेक्शन, की किसी चीज पे जिस पे जोर नहीं देना है हम उन पे इतना जोर दे रहे हैं। जैसे बच्चे बोले डोर ओपन, जैसे नॉर्मल चीज होती है कि चलो मामा डोर ओपन कर दो, मामा डोर ओपन करो, ठीक है। ये एक नॉर्मल इंटोनेशन नहीं है जो अप्रैक्सिया में बहुत ज्यादा सुनने में आता है। किसी जिस साउंड पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए बातें करते वक्त, जिस साउंड पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर हम इनकंसिस्टेंट तरीके से हम उस पर स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, वावल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, मतलब आ ई ओ यू ए जितने भी वावल है ये सारे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। मतलब उनको जैसे आ को आ बोलना है तो ए बोल दिया आ की जगह पे, ए को ओ बोल दिया, ऐसे करके डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ओमिशन भी देखने को मिलता है कि कोई शब्द है उसके कॉन्सोनेंट है तो
उसको हटा दिया या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लगा दिया। और सबसे जो मेजर इसका सिम्टम होता है, वी कॉल इट ग्रोपिंग। ठीक है, ग्रोपिंग का मतलब होता है बच्चा, मान लो उसको ट बोलने को बोला फॉर एग्जाम्पल, ट बोलने का प्रोसेस क्या होता है कि हमने टंग ऊपर लिया, ट, राइट, माउथ को ओपन किया और वो साउंड आया। बट इन बच्चों में क्या होता है, ट बोलने के लिए त, 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 तो वो क्या होता है ग्रुपिंग, मतलब प्लेस फिगर आउट करने के लिए ना उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता है कि हमें कहाँ पे रखना है कि वो हो जाए, कहाँ पे मैं टंग रखूं कि हो जाए। वो करना चाहते हैं बट उनके जो मसल्स है, जो ब्रेन के सिग्नल है वो नहीं ले रहे हैं, तो वो इधर उधर जा रहे हैं। ये सारे हो गए सिम्टम। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चे को है तो प्लीज टॉक टू योर स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट, गेट द असेसमेंट थरोली। दूसरा सिम्टम है बच्चे की आइडेंटिफिकेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है। अगर बच्चा 3.5-4 साल का है और आइडेंटिफिकेशन एक्सप्रेशन में फर्क है तो भी आप, इट्स एन इंडिकेशन, नॉट अ शॉर्ट सिम्टम, इट्स एन इंडिकेशन कि आप उसको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से असेस जरूर कराओ कि सर और मैम इसको कोई और समस्या तो नहीं है इसके लिए। Now coming to the cause of apraxia of speech specifically, it's not very well known. यूजुअली ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, हेड ट्रॉमा। जो बच्चे को बचपन से है तो उनकी हेड में, जैसे आप बोलो कि नहीं ये बच्चा कभी नहीं गिरा, इसको तो कभी स्ट्रोक नहीं हुआ, माइट बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, कभी कभी ब्रीच डिलीवरी होती है, कभी कभी सी सेक्शन में इतना ज्यादा नहीं होता है, बट जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कभी हेड प्रेशर, बच्चे के हेड पे कभी कुछ हार्ट प्रेशर लग गया, या डिलीवरी के वक्त अगर कुछ मिसहैंडलिंग हो गई थोड़ी बहुत भी, तो ब्रेन का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है तो रिलेटेड टू स्पीच इट माइट कॉज अप्रैक्सिया। दूसरा होता है कि कभी कभी, इट्स वेरी रेयर बट इट्स जस्ट वन आउट ऑफ यू कैन से लाइक 70-80 किड्स दे हैव जेनेटिक कंडीशन, कि उनके जीन में ही ये चीजें रन कर रही है। सो दैट इज द थिंग। तो ये सब सिम्टम अगर हो तो आप प्लीज अपने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से जरूर मिलिए, ठीक है। दूसरी चीज है चाइल्डहुड अप्रैक्सिया की जो सबसे अच्छी बात है कि इट इम्प्रूव्स रियली वेल एज एन, अगर आप उसको ट्रीटमेंट करोगे तो वो मिस आर्टिकुलेशन की तरफ होते होते अप्रैक्सिया, कम मिस आर्टिकुलेशन, और ग्रेजुअली वो नॉर्मल स्पीच पे आ जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे उसको ट्रीट करें, ठीक है। और जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट मेथड होगा ये मैं पहले बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि हम सारे बच्चों पे वो अप्लाई करेंगे। मैं एक जनरलाइज टर्म बता रही हूँ। हर बच्चे के लिए ट्रीटमेंट प्लान कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, एज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कॉग्निशन के हिसाब से। सो प्लीज डू नॉट ट्राई एवरीथिंग ऑन योर किड, टेक द सजेशन ऑफ द एक्सपर्टीज, ठीक है, जिनसे भी आप थेरेपी ले रहे हो। और इफ यू वांट टू consult someone else, whatever is the condition, it's not exclusively for any child, it's just the general situation. एक जो होती है इसमें सबसे पहले वो होती है ओरोमोटर एक्सरसाइज, ठीक है। ओरोमोटर एक्सरसाइज में जो बहुत ही बेसिक होता है, फेस मसाज, लिप्स टैपिंग, देन लिप्स के एक्सरसाइज, टंग के एक्सरसाइज, लैटरल एंड प्रोट्रूजन एक्सक्लूजन मूवमेंट ऑफ द टंग। और ये हो गए जो आपके बाहर के मसल्स आपके कंट्रोल में रहे, जिसमें कि आपके लिप्स और टंग और चीक्स के मसल आते हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि ये सब तो कंट्रोल में है बच्चे के, बट फिर भी उनको परेशानी होती है, स्पेसिफिकली इनर पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटर्स, क्योंकि बहुत सारे साउंड जो है हम अंदर बोलते हैं, ठीक है। अंदर बोलने का मतलब है जैसे ट बोलना हो तो हमें दिखता नहीं है, हमने टंग के बहुत सारे मूवमेंट कर लिए, टंग ऊपर आया, टंग नीचे आया, पैलेट ऊपर हुआ, फिर हमने माउथ ओपन किया तो अंदर का जो जॉ होता है वो मूव किया, सॉफ्ट पैलेट ने हवा छोड़ी, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो उसके लिए हमें मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। स्टिमुलेशन के लिए हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलेशन हम उनको रेकमेंड करते हैं।
अगेन ये प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन के अंदर ही होना चाहिए, प्लीज आप खुद से नहीं कीजिए, ठीक है। ये हो गया फ्यू सेट ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर few set of odomotor exercises. Then coming to the exercise for the speech और the sound related issue, ठीक है। एक जो होता है हम डीडी के करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम पट का जो साउंड है वो 3 अलग अलग जगहों से बोली जाती है, जैसे प लिप से, ट पैलेट से, क पीछे से। तो ये क्या हो गया, ये फ्रंट साउंड हो गया, मिडिल साउंड हो गया, बैक साउंड हो गया, ठीक है। तो इन तीनों की एक्सरसाइज के लिए हम एक टाइम सेट करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, बहुत कोऑपरेट नहीं करता है, तो आप 15 सेकंड से शुरू कर सकते हैं कि आपने 15 सेकंड का टाइमर दिया बच्चे को क्वार्टर पर रिपीट करने के लिए किया। आप देखो कि 15 सेकंड में बच्चे ने कितना रेपिटेशन किया, लाइक पटका 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 पटक। ट्राई टू इम्प्रूव 1 or 2 रेपिटेशन एवरी वीक। अगर मान लो 15 सेकंड में 3 रेपिटेशन किया, ट्राई करो कि बाय नेक्स्ट वीक 15 सेकंड में वो 4 रेपिटेशन करें। ग्रेजुअली इम्प्रूव द टाइम एंड इम्प्रूव द रेट ऑफ रेपिटेशन 1। दूसरी चीज है, इसी का ब्रेक करके सेम जैसे आपने 15 सेकंड का टाइम लगाया, फिर प प प प प प प प प बच्चा जैसे जैसे भी कंफर्टेबल हो कि वो 30-15 सेकंड में उसने कितनी बारी प बोला, आप उसको डॉट दे के गिन सकते हो। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि वो एक साउंड ज्यादा बोले, हफ्ते में 2 या 3 रेपिटेशन ट्राई करो कि उसके संग बढ़े। मेक श्योर दैट जब भी एक्सरसाइज करो तो पहले ब्रीद इन, देन यू स्टार्ट सेइंग द साउंड। इसके लिए प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके बच्चे को रेपिटेशन मतलब इमिटेशन ऑफ साउंड और वर्ड आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये हो गए पटक की जगह पे आप बड़ा का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स द डीडी के बाद वावेल ग्लाइड्स, ठीक है। वावेल ग्लाइड्स में हम जितने भी 5 वावेल हैं उनके हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जैसे आ ई ए उ 5 हो गए। अब आ के साथ ई, आ के साथ ए, आ के साथ उ, आ के साथ ओ, आ ई आओ आओ आए, ठीक है। ये फ्लो में होना चाहिए, जैसे आई आ ई नहीं, आई आए आओ आओ, ठीक है। ऐसे ही करके हम 5 वावेल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। जब ये एक्सरसाइज हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, फिर हम नॉनसेंस सिलेबल के ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं कॉन्सोनेंट वावल मिला के, ठीक है। CVC, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो उसका सबसे बेसिक और अच्छा तरीका जो हम वो अपनाते हैं कि पहला कॉन्सोनेंट हमने क ले लिया, पहला वावल आ ले लिया, पहला वावल क ले लिया, काक। अब जो एंड वाला का है आपका, एंड वाले का को आप सारे कॉन्सोनेंट से रिप्लेस कर दो, काक खाक काक काक काच काच काज काज काप काट काम, ऐसे करके सारे वावल रिप्लेस कर दो। और फिर वैसे ही आप जब करो तो फिर कॉन्सोनेंट और वावल, उसके बाद फिर उसके वावल रिप्लेस कर दो। आप बैठ के पेपर पेन पे बना सकते हो, 2 घंटे लगेंगे बामुश्किल आपको सारे कॉन्सोनेंट वावल के कॉम्बिनेशन बनाने में। नाउ कमिंग कि व्हाई नॉनसेंस सिलेबल, क्यों इसका एक रीजन है कि ब्रेन जो होता है ना सुनी हुई चीजों को उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता है और उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। और जो सुनी हुई चीजें, क्योंकि जब नॉनसेंस सिलेबल बनाते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, जो हम हमेशा डेली यूज में से काक, काक कोई शब्द नहीं होता, बहुत सारे लैंग्वेज में, हाँ किसी किसी लैंग्वेज में ये मीनिंगफुल शब्द हो सकता है। काक, काक कोई किसी किसी लैंग्वेज में मीनिंगफुल है, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में जो नॉनसेंस लेवल बनाओगे तो उसमें 10 या 15% वर्ड्स ही ऐसे होंगे जो सेंसिबल वर्ड्स होंगे, बाकी सारे नॉनसेंस वर्ड्स होंगे। इट्स इजी फॉर ब्रेन, इट्स फ्रेश, सो इजी फॉर ब्रेन टू लर्न इट, ठीक है। सो डीडी के जिसमें पटका और प अलग, ट अलग, क अलग के रेपिटेशन इन द लिमिटेड टाइम, वावल ग्लाइड, CVC कॉम्बिनेशन। जब CVC कॉम्बिनेशन मतलब उसमें दो सिलेबल हो गए, कॉन्सोनेंट वावल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। 2 सिलेबल जब हो जाए तो ऐसे करके आप उसको सिलेबल की लेंथ बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे 2 सिलेबल वर्ड,
जैसे टाटा 2 सिलेबल वर्ड हो गए, ठीक है। फिर आप उसको 3 सिलेबल बनाओ, 4 सिलेबल बनाओ, करते करते 5 सिलेबल इज अ टारगेट। अगर 4 तक भी अचीव होता है तो इट्स ओके, बिकॉज 5 सिलेबल वर्ड्स आर नॉट वेरी ऑफन टू से इन द most of the language. 4 should be the ideal 5 should be the ideal target, but 4 भी है तो चलो ठीक है, over a period of time child will pick it up. तीसरी जो हो गई ये क्या कहते हैं syllable practice. Next we come to the manipulation. बच्चा बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, अरे मैम ये तो कुछ भी नहीं करता, थोड़ा सा डिजिटल मैनिपुलेशन यूज करो सामने बैठे बच्चों के सामने। फिर अगर ना हो तो फिर जैसे मान लो पा बोलना है, आपका बच्चा पा नहीं बोल पाता है, हेल्प करो, पा पा आप बोलो, उस साउंड को कैसे बोलते हो उसको डिजिटली प्लेस करके दिखाओ। टब बोलना है, वॉश योर हैंड और वेयर योर ग्लव्स एंड पुट योर फिंगर on the palate, the point where it has to the tongue has to go for T or the sound T. सारे एक्सरसाइज अगेन मैं बोलूंगी बिना किसी प्रोफेशनल के एडवाइस के या बिना किसी प्रोफेशनल के ऑब्जर्वेशन के नहीं करना। इट्स जस्ट द बेसलाइन आई एम गिविंग यू सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इट इज। दूसरा होता है कि आप बच्चे को मिरर के सामने बिठा लो। ये सारे जो भी कॉन्सोनेंट वावल के एक्सरसाइज हैं या वावल ग्लाइडिंग है या डीडी के हैं, ये सारे एक बड़ी सी मिरर ले लो या सबके घर में ड्रेसिंग मिरर होता है। Have a sitting arrangement like child is sitting in front of you and your face is shown to the child, जहाँ पे बच्चा आपके फेस को देख सकता है। देन आप बैठ के या खड़े होके जो भी आपने सिटिंग पोस्चर किया, अगर ये बच्चे का फेस है तो योर फेस शुड बी लाइक दिस सो दैट बच्चा आपको मिरर में देखे, आप उसके पीछे खड़े हो जाओ सेम एंगल पे। एंड देन मिरर में शुरू करो, छोटे छोटे शब्द से शुरू करो, ग्रेजुअली आप उसको बड़े बड़े शब्द की तरफ ले जा सकते हो। Oral oromotor massage are very important in order to stimulate the articulators, क्योंकि articulators अगर stimulate होंगे तभी वो सिंक में आएगा और तभी आपको आपकी प्रोसेसिंग बेटर होएगी एंड जो भी आप कमांड दोगे उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थोड़ी बेटर हो पाएगी, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द सो दीज आर द एक्सरसाइजेज यू कैन डू एट होम। एक और चीज जो है, कभी कभी बच्चे को फोनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि आप बोलो कुछ, फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम कि आप बोलो कुछ बच्चा बोलता कुछ है। ये अप्रैक्सिया में भी होता है और ये फोनेटिक डिसऑर्डर में भी होता है। तो दोनों में बहुत ही फाइन लाइन डिस्क्रिमिनेशन है कि फोनेटिक डिसऑर्डर जब होगा तो उस बच्चे को सुनने में, मतलब सुनने का मतलब ये नहीं कि बच्चे ने नहीं सुना, जो शब्द सुना वो शब्द ब्रेन तक उसी फॉर्म में पहुंचा या नहीं पहुंचा। अप्रैक्सिया में होता है कुछ शब्द ब्रेन तक तो पहुंचा लेकिन जब उसको निकलना है तो वो गलत साउंड या ही इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर और अप्रैक्सिया में एक फाइन लाइन डिफरेंस होता है। अगेन इसके लिए आपको किसी भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब हो गए हमारे पॉइंट्स अभी के। Now I'm open for case discussion. हम 3 केसेस ले सकते हैं, अभी 4:25 is the time। हम 3 केसेस ले सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे, किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि मैंने जो सिम्टम बताई है और जो भी उससे रिलेटेड इश्यू अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो जो भी सीवियर कैटेगरी के हैं प्लीज ओपन फॉर इट। जिनको भी लगता है कि ये सब सिम्टम उनके बच्चे में, वी कैन डिस्कस द 3 केसेस। हेलो। यस। हेलो मैम, मेरा बेटा 3.5 इयर्स का है, 3.5 साल का है और सारे सिम्टम्स मुझे उसमें दिख रहे हैं जो आपने बोले। एक्सक्यूज मी मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम रीना है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी जी। 3.5 साल का है और आपने जो सिम्टम्स बोले सारे सिम्टम्स मुझे अब उसमें बिल्कुल सही दिख रहे हैं, मतलब। और मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है अपने थेरेपिस्ट से, बट वो हमेशा डिनाई करते रहते हैं कि उसको नहीं है एपिलेक्सी, उसको नहीं है। बट अभी उसके साथ मैम ऐसा होता है, जब उसको मैं हैंड सपोर्ट जब प्रॉम्प्ट देती हूँ तो वर्ड्स बिल्कुल सही आते हैं, बट जैसे मैं हैंड सपोर्ट के प्रॉम्प्ट हटाती हूँ वर्ड्स नहीं आ पाते।
मेजरली प्रोप्रियोसेप्टिव अप्रैक्सिया का ही पार्ट है ये। आपने मैम। इनसे भी डिस्कस किया। यू नीड टू आस्क देम टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कि सर अगर ये सर या मैम अगर ये अप्रैक्सिया नहीं है तो क्या है, हाउ वी कैन गो अहेड इट। वो मुझसे बोले मैम कि ऑटिज्म में भी बच्चों में जिद होती है, जिद के कारण बच्चे बोलते नहीं है। मतलब मुझे ये बोलते हैं कि ऑटिज्म में बच्चों में बहुत जिद होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट वांट टू स्पीक। बट मैंने काफी दिन से ये चीज मैम ऑब्जर्व करी थी कि ही वांटेड टू स्पीक बट ही इज नॉट एबल टू स्पीक। Ma'am, see, before I discuss your problem, I give you an insight, insight of the thing. You have a child with autism, all right? Yes, ma'am. He or she is not autism. You have a child with autism. So when it's a child, first and foremost, child will have its personality. You cannot deny that, right? Yes, Because ma'am. it's a human being. Then when it's a child, he will have the personality. So personality can have negative and positive both the characters, all right? Yeah, ma'am. There is one part that is part of personality and there is one part of problem. Like if child can say that word even once in 100 times, I accept it that child is capable of saying it, child is not saying it out of behavior. That is Okay. a fine discrimination. Child can never say that word without a prompt. I would take it as part of problem. Okay. Again, if it's a part of if it's the child, जैसे आपने बोला कि जिद है, part of personality, तो 24 आवर बच्चा जिद नहीं करता. It happens like in every 1 2 hour child can be stubborn. उस टाइम नहीं बोलता है, accepted that it's because of the child's behavior. अगर बाकी टाइम बच्चा बोलता है, accepted that child knows, at least he knows it. Yes, ma'am. जो चीजें ना कि फाइन लाइनिंग सिल्वर लाइनिंग हमें अलग अलग करनी। मैम दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने बाकी टाइम पे उसको रेयरली ही बोलते देखा है। मतलब जैसे मैंने बिकॉज आई हैव सीन किड्स कि वो मीनिंगलेस वर्ड्स बोलते रहते हैं। मतलब ऑटिज्म के बच्चों कैसे मैंने सुना है कि बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद स्पीच, इट्स अ प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो मैंने उनसे भी डिस्कस किया मैम कि मतलब मैं बाद में भी मतलब रियली ही सुनती हूँ कि वो कोई वर्ड अपने आप से बोल रहा हो या नहीं। मतलब जैसे कार, आज के कार बोलना कोशिश कर रहा है तो का बोलता है, र नहीं बोलता। एप्पल इज समथिंग ही इज स्पीकिंग सिंस लास्ट 1 ईयर और अभी तक वो एप्पल बोल नहीं पाया। एप्पे एंड ही नोज मेनी थिंग्स। पहले उन्होंने मुझसे बोला कि कॉग्निशन लेवल आने के बाद ही ऐसा होता है कि बच्चा स्पीच आता है, बट उसका कॉग्निशन लेवल अब ठीक है, इट्स नॉट बैड आई कैन से बिकॉज ही नोज मेनी थिंग्स बट स्टिल इज नॉट एबल टू स्पीक। तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया बट अगेन दे आर डिनाइंग द सेम थिंग। वो बोलते हैं कि नहीं अपेक्षा नहीं हो नहीं सकता आपके बच्चे को। We are sitting in quite a good crowd, so commenting on any of the personal professional is not a good thing. Yes, My ma'am. suggestion is you look the problem for children, consult with an expertise. If you not तो मैम आपसे ही पूछना है कि इसका करेक्ट डायग्नोसिस कौन कर पाता है? Who is the speech and language pathologists are the one, as in like we are the one who do it. Okay, ma'am. न्यूरोलॉजिस्ट, बट ये जो स्पेसिफिकली ASD का केस होता है ये बहुत ही मिसडायग्नोज केस होता है। Fine, ma'am. Reason that neurologists see it with a different perception, they have a different parameter of tests, and symptoms are manifested in quite different way than their parameter. So I would always suggest go to the good speech language therapist. Not saying where you are going is not a good, but for some reason it is not acceptable there, you're certainly supposed to take the अच्छा मैम आई नो अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो कि हैंड सपोर्ट से बच्चों को बुलवाते हैं, वर्ड्स आर कमिंग, तो इज इट ओके फॉर मी टू गो टू हर ताकि वो जो प्रॉम्प्ट उसको चाहिए वो उसको हेल्प, मतलब मैनिपुलेशन जो आप कह रहे थे वो उसके साथ वर्क कर रहा है? See ma'am, target is not to make the sound with digital manipulation. Target is to make it independent. So we use the technique digital manipulation. So gradually it has to be faded. Reduced. हाँ वो मैं मानती हूँ मैम, वो मुझसे वही बोले कि initially I will give, then I will reduce it down. Then it's okay. Then I should continue, ना? I should go to that therapist. Yes, and do the oromotor exercises as well. It will stimulate the muscles around. It helps a lot. Fine, ma'am. But आपने बोला कि I have to ask an expert for that. ना? Yes, I meant by that wherever you are going, ask them to help you with that. Fine, ma'am. I will ask and I will get. Thank you so much, ma'am. मेरे बहुत सारे queries आज solve हुए हैं। मुझे बहुत दिन से सर से ही बात करनी थी कि सर मुझे बहुत सारी queries हैं regarding apraxia. Thank you so much, ma'am. The second question is open. Anyone else?
अगर किसी और पेरेंट्स को लगता है कि इससे रिलेटेड कोई और समस्या है, किसी किन्हीं को अपने बच्चे में ऐसे सिम्टम दिखते हैं, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन। स्पेसिफिक किसी भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है। हाय मैम, दिस इज संजीवन। हाय। सो मैम, सिम्टम्स थे ना हमारे बच्चे में, सेम सिम्टम्स थे व्हेन ही वाज लाइक 3 इयर्स ओल्ड तक। तभी तक उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ था। उसको जो हमने डायग्नोस कराने का कोशिश भी किया था तो बोले थे कि सोशल ही ओके, लैंग्वेज एंड स्पीच है तो इट विल हील कवर, बट वो कवर नहीं। फिर अभी उसके बाद वो क्या करता था ना कि ऐसे हमारे फेस को देख के। Sir, how old is your son, the child now? नाउ ही 6 मैम। 6, okay. तो मैम वो ना ऐसे फेस पकड़ के हमारा देखता था कि कैसे आप बोलते हो, पर वो पता था। जैसे एक हेलीकॉप्टर वर्ड है तो हेपका हेपका करके 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर लगाता था। फिर किसी दिन उससे निकल जाता था हेलीकॉप्टर, उसके बाद से फिर वो वर्ड को कंफर्म हो जाता है, उसके बाद वो रिपीट नहीं करता है। मैम वो अभी उसका लर्निंग बढ़ गया है, थोड़ा कॉग्निशन बढ़ गया है, बट ये तो लर्निंग का तरीका है उसका वो अभी भी है मैम। अभी भी वो रिपीट करता रहता है, करता रहता है। और वो फिर जब वो बोल लेता है उस चीज़ को, अब वो सिंपल वर्ड से हटके अब सेंटेंसेस पे आ गया है। तो उसका लर्निंग में बड़ा डिफरेंट हो रहा है कि वो पूरा सेंटेंस रट लेता है, उसका मतलब समझता है, फिर वो उसको बंद करता है रिपीट करना। तो मैम ये भी अप्रेक्सिया का ही पार्ट है क्या ऐसा? सर, जो आपने बोला एरोप्लेन वाला पार्ट कि वो एक वर्ड को रेपिटेडली बोल के सीखता है फिर बोलता है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अप्रैक्सिया। बट जो सेंटेंस बोलते हो, समवेयर द लर्निंग हैज गॉट इट लाइक दैट कि उनको हर चीज एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझ के फिर वो अप्लाई करते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ अप्रैक्सिया, क्योंकि आपका बच्चा 6 years का हो गया है, and I assume he has a good cognition and good intent of learning. Intent of learning मतलब बच्चे को सीखने की इच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अच्छा मुझे तो बोलना है, तो अब बोलने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया कि जो सामने वाला जैसे बोलता है मुझे भी वैसे बोलता है, इसलिए वो आके आपके फेस पकड़ता है या आपका फेस बहुत ही पास से देखता होगा, आप जो भी प्रोनाउंस करते होगे उसको बहुत ही पास से ऑब्जर्व करता होगा। Am I right? यस मैम। यस। तो फिर वो उस तरीके को अपने आप को करने की कोशिश करता है, और आप कहते हो जैसे 1-1.5 महीने में बोल लेता है। फिर देन ही कम्स टू द एक सिम्टम ऑफ अप्रैक्सिया को वो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग, कि वो ट्राई करते करते कि अच्छा इस शब्द को ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, इसको मैं कैसे बोलूं, और करते करते फाइनली ही रीचेस टू द लेवल वेयर ही कैन से दैट। यस। यस मैम। अभी मैम 2 र और ड कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो नहीं बोल पाता है, वो बहुत ट्राई करता है, उसके बाद वो ऐसा लगता है गिव अप करके छोड़ देता है। सर देखो, एक्सक्लूसिवली फिर से मैं बोलूं, एक साउंड 2 साउंड जो होते हैं वो तो आर्टिकुलेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे र, ड तो इस एज का नहीं है, बट र इज यूजुअली अचीव्ड बाय, अगर बच्चे में डिले है तो हम 6 years तक वेट करते हैं। श, र, ये सब 6 year के प्रोफाइल में आते हैं, तो इट माइट बी अ पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जब बच्चे को आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। बट यस, सर्टेनली जो आपने बोला, जो वर्ड वो देख के आपके फेस को टच करके आपको बिल्कुल पास से आके करता है, दैट इज पार्ट ऑफ अप्रैक्सिया एंड ही हैज गॉट अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें बोलने की इंटेंट है, तो मैं कैसे बोलूं। इंटेंट वो आखिरी में अभी जैसा हो गया, बिकॉज बोलने का इंटेंट अब आता है, कुछ चीज मांगनी होती है या कुछ अपनी चीज का चाहिए होता है। Yes, motivation could be anything, no sir. Yes. So, but still, I would suggest go for like at least few sessions about this apraxia treatment. It will help your child because हाँ उसको मैम। है और उसकी इच्छा है, तो it will help a lot. उसको भी हमने नोएडा में और दिल्ली में काफी जगह पे ये बोला था, स्पीच थेरेपिस्ट को, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को भी दिखाया था। जी। तो उन्होंने इवैल्यूएट करके वो यही बोले कि अप्रैक्सिया नहीं है, आप है, विच हमें कई बार लगता है कि बिकॉज वांट्स टू से बट नॉट एबल टू। तो हमने उनको कई बार बोला, फोर्स भी किया, आप अप्रैक्सिया के लिए कुछ है तो हमें बताइए। तो उन्होंने इट इज बिकॉज ऑफ ऑटिज्म ही इज नॉट एबल टू। Sir, I told you initially itself, apraxia, childhood apraxia never occurs in isolation. It's always a comorbid condition, as in it always occurs with some or the other bigger problem. ऑटिज्म के आप देख लो तो 20 to 25% केसेस में अप्रैक्सिया होते ही होते हैं,
be it apraxia of speech or be it a general normal apraxia. और अगर बहुत ही फाइन आप कर दो तो 15% बच्चे में अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच ASD में होता ही होता है। ऑटिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, बट उसमें छोटी छोटी बहुत सी समस्या होती है। तो आपके बच्चे को भी अप्रैक्सिया के सिम्टम है, wouldn't say he has a complete apraxia of speech, but he has mild symptom of apraxia. It has to be treated. Again, not a personal comment, but you can see the better, like anyone who. So yeah, and thanks, ma'am. Actually, we were thinking of taking him to another opinion. हाँ. Hello. Hello, madam. Hello, madam. Hi. My son is 5 years. अच्छा, एक आप स्मिता जिनके नाम से भी फ्लैश कर, आप पहले बोलो या फिर प्रियंका, कोई एक बोलो। ओके, सो मेरा एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, लाइक मेरा बच्चे भी 5 इयर्स का है, जो बेटा अभी हम उसको जब कुछ चीज बोलते हैं ना, जैसे कुछ अगर सीखना हो करना हो तो वो रिपीट करता है। मतलब मैं अगर पूछूंगी ये कहाँ, मतलब पानी गिरा है तो क्या गिरा है, तो जब तक उसको वो आंसर नहीं बोल रहा है ना, तो मुझे वो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलता है। व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्वेश्चन को समझता है, फिर भी हमें वो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलता है, जब तक वो आंसर नहीं बोलता है। और फिर जब वो आंसर बोलता है, ही स्टार्टेड क्राइंग। सो जो रिपीटेशन है ये, जो इधर उसको क्या ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, या वो जो रिपीटेशन होता है ही टेक्स टाइम टू थिंक अबाउट इट, मुझे वो समझ में नहीं आता है मैडम। सो जस्ट वांट टू आस्क यू, एज स्पीच और इसमें मैंने पूछा था थेरेपिस्ट को, उन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बट ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मतलब जब भी वो आंसर नहीं दे पाता तो हमें और बार बार रिपीट करने के लिए बोलता है, फिर वो आंसर को रिपीट करता है, जो हम फिर बोलते हैं नहीं ये तो पानी है, तो अगेन मतलब वो बोलेगा कि आप फिर से क्वेश्चन पूछो, तो हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर वो आंसर देगा। अच्छा, एक मिनट। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से एक बॉटल गिर गई, फॉर एग्जांपल आपने पूछा उससे बेटा क्या गिर गया, बोलेगा मम्मा फिर से बोलो, ऐसे बोलता है? नहीं, अगर मैंने पूछा क्या गिर गया, तो ना वो रोके बोलेगा क्या गिर गया, क्या गिर गया। तो अगर मैंने उसको बता दिया कि नहीं यहाँ पे एक लेगो गिर गया या गिर गया, तो वो लेगो गिर गया नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या गिर गया। फिर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या गिर गया, तो वो बोलेगा नहीं लेगो गिर गया। तो ये ना एक साइकिल 5 मिनट 6 मिनट का चलता है, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस के लिए। मैम, तो उसको जो लेगो गिर गया, एक बार जब उसको आंसर समझ आते हैं लेगो गिर गया, तो उसको बोलने में परेशानी नहीं है कुछ, फिर वो रिपीट कर देगा? हाँ, फिर वो रिपीट करता है, मैम, दिस इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे उसमें दो पार्ट है। एक, उसकी सिग्नल डिले होती है, ठीक है, लेटेंसी बहुत हाई है, ब्रेन की प्रोसेसिंग टाइम हाई है, सिग्नल डिले होती है, उसको कवर अप करने के लिए जो आप बोलते हो वो रिपीट करता है। दूसरी, समवेयर ही हैज गॉट प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ये एक्सक्लूसिवली ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम का पार्ट है मैम। ओके ये ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, प्रियंका बोल रही हूँ। मेरा बेटा 5.5 साल का है जी। और प्रॉब्लम तो बहुत है क्योंकि उसकी स्पीच सिर्फ 2 या 3 वर्ड की है। और जब वो 1.5 ईयर का था, उसका काफी स्पीच था, काफी अच्छा वर्ड था, लाइक 30-40 वर्ड्स रहे होंगे और वो क्लियर वर्ड्स थे। जैसे डिफिकल्ट वर्ड ऊपर भी वो बोल पाता था और मीनिंगफुल था। जैसे कि हम उसको दिखा के ऊपर पूछते थे चंदा मामा कहाँ, तो ही इज सेइंग ऊपर और दिखा के। फिर वो कब रिग्रेस्ड हो गया और कब मतलब उसका ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ 3.5 में, बट उसको 0 तब से आज तक उसकी 0 स्पीच है। और हम अभी शिफ्ट हुए यहाँ गुड़गांव, तो हमने स्पीच थेरेपी यहाँ पे प्रॉपर मुंबई में थे, वहां पे कोई प्रॉपर स्पीच तो मिली नहीं मुझे, ओटी वगैरह कराते रह गए। अभी हमें स्पीच थेरेपी तो मिल गई है, बट मुझे लग रहा है कि जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं वो सब मेरे बेटे में मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि ही कांट स्पीक ये 3-4 वर्ड, लाइक अगर हाँ वो रिपीट कर पाता है,
और जैसे उन्होंने बताया अभी कल रीना जी ने, वही सेम उसका एप्पी, एप्पी, ए फॉर एप्पी ऐसे बोलता है। और वो ना हमारा फेशियल मूवमेंट देखता है, वो कॉपी करने का कोशिश करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से आवाज नहीं निकल पाती, उसे समझ में नहीं आता कि आवाज कैसे निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैम देखो, दो चीजें, एक तो आपके बच्चे का जो रिग्रेशन का केस है, ठीक है, रिग्रेशन के केस में हमेशा जस्ट नॉट टू मेक होल थिंग नेगेटिव, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि रिग्रेशन में अगर हमने जितनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दी, इट टेक्स रियली लॉन्ग टू गेट बेटर। प्रोग्नोसिस थोड़ी सी कम हो जाती है अगर टाइमिंग हमारे ट्रीटमेंट का ज्यादा हो गया तो। दैट इज वन ऑफ द रीजन आई फाइंड, क्योंकि आपने बोला अभी तक आपको स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिला। दूसरा 5.5 years का है, he is 5 हाँ जी। years, he has intent to talk। आपके बच्चे में अप्रैक्सिया भी है, एंड देन ही हैज गॉट द डिफिकल्टी विद, वो भी पार्ट ऑफ अप्रैक्सिया, जॉइनिंग द साउंड्स टुगेदर टू मेक द वर्ड। जैसे एप्पल बोलने के लिए, ठीक है, उसमें 3 सिलेबल है, एप्पल, ठीक है, ठीक है। तो 3 सिलेबल को ज्वाइन करने तो वो 2 तक तो कर पाते हैं, तीसरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये सिलेबल लेंथ प्रोलॉन्गेशन एक्सरसाइज करानी आपको जरूरी है। अगेन मैंने आपके बच्चे को देखा नहीं है, तो मैं आपके फीडबैक पे कह रही हूँ कि 2 सिलेबल से 3 की तरफ मूव करो। बट आप अभी जहाँ भी स्पीच थेरेपी करा रहे हो, आप उनसे ये डिस्कस करो कि ये समस्या। मैम मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, जैसे कि ग्रुप में बहुत सारा एप्रेक्सिया वगैरह चल रहा था, और बच्चा भी बड़ा होते जा रहा है। 5.5 मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, सबके लिए बड़ी बात है, क्योंकि लोग 3 इयर्स के बच्चे के लिए परेशान है इतना ज्यादा, तो मेरे लिए ज्यादा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई सजेस्ट करें गुड़गांव में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कोई अच्छा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। यू आर I प्रोफेशनल। need to check, then I can update you। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी आप चैट बॉक्स में छोड़ दो, विल हैव अ कैन डू इट। मैम देखो, अप्रैक्सिया जो होता है ना, बहुत ही ओवरलुक प्रॉब्लम है एएसडी के साथ। It's not 1 or 2, more than 75% of the professional, to be very frank, does not accept the fact that ASD kid can have a praxia. So I'm not blaming anyone. Maybe people don't pay attention, or I don't know the reason, but it is, yes, one of the overlooked। because जैसे अगर हमने अभी 1 2 3 4 केसेस डिस्कस किए, 4 में से किसी प्रोफेशनल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक कि बच्चे को अप्रैक्सिया है, right? So you can see the data. More than 75% of the people do not even accept that there is this part of problem. So we cannot do anything. However, I'll try to do, I figure it out। अगर मुझे कुछ पता चला गुड़गांव में exclusively someone is working for apraxia, I'll let you know। ओके मैम, थैंक यू मैम। Most हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी। हेलो, आवाज आ रहा है मैडम? जी जी, बताइए। हाँ मैडम, मेरा नाम अमित है। मेरी लड़की को बचपन से ऑटिज्म है। हेलो जी बताइए। हाँ, मेरी लड़की को बचपन से ऑटिज्म है। हाँ जी हेलो, सर बताइए। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैं बता रहा हूँ, मेरी लड़की को बचपन से ऑटिज्म है, ठीक है। और 6 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ ऑटिज्म। आज वो 9 साल 9 महीने की है। हेलो जी बताइए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरे को काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, इसीलिए। वो किन्हीं का म्यूट नहीं होगा तो शायद होगा, बट आपकी आवाज क्लियर है सर। अच्छा मैडम, तो मतलब पिछले 2 साल से मेरी लड़की स्पीच थेरेपी अटेंड कर रही है, जी। लेकिन एक दिक्कत ऐसी हो रही है कि र शब्द के बजाय वो ल बोलती है। जैसे अगर रेड बोलना हो तो रेड के बजाय लेड बोलती है वो। तो मतलब ये इसमें स्पीच थेरेपिस्ट को भी काफी दिक्कत आ रही है कि वो मतलब उसको कैसे र बोलना कैसे सिखाए असल में। सर ये आर्टिकुलेशन का पार्ट होता है, और ये आर्टिकुलेशन थेरेपी में की जाती है। कभी कभी होता है बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है,
बट वो डिफरेंट टेक्निक्स अगर ट्राई करें, एक टेक्निक से नहीं हो रही तो उसके लिए ड्रिल होते हैं और मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। एक्सक्लूसिवली तो सर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आप उनको कह सकते हैं कि सर अगर ये टेक्निक काम नहीं करे तो क्या हम दूसरी टेक्निक यूज कर सकते हैं, कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए मैं भी यही सजेशन दे सकती हूँ सर। नहीं, क्योंकि मैडम 2 साल से मतलब कोशिश कर रहे हैं, 2 साल में भी ये र और ल में गड़बड़ हो ही रही है अभी भी। सर तो अगर बच्चे को सारे साउंड आते हैं र और सिर्फ र और ल में मतलब र का प्रॉब्लम है, तो प्रोबेबली हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो उनको फिट नहीं बैठ रही है। तो वी नीड टू ट्राई समथिंग एल्स, हमें कुछ कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, अलग टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। ये आप उनसे जहाँ भी आप थेरेपी लेते हैं वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। हेलो हेलो मैम। हेलो। हेलो अच्छा 2 लोग हैं, एक लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी बताइए। जी मैम, मेरा बेटा 5 साल का है, अब होने वाला है नवंबर में, 12 नवंबर। तो मैम इसके साथ ये इशू मुझे बार बार आ रही है, लाइक मैं लास्ट 2 ईयर से थेरेपी करवा रही हूँ इसकी स्पीच की। तो मैम एक सेटल लेवल पे आके ना हमेशा ऐसा होता है कि ये हमेशा पीछे की तरफ चला जाता है। मतलब कुछ मैंने सिखाया इसको, ये वहाँ थेरेपी में सीख रहा है, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स वही चीज क्या होती है, लगता है कि एकदम भूल गया, कुछ नहीं आता। और मेन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैम कुछ चीजें हैं कि एकदम से बोल देगा, जैसे कार जो है इसके माइंड में जैसे फिक्स हो गया है, देखते ही कार बोल देगा, वर्ड ज्वाइनिंग कर लेगा। बट कोई ऐसी चीज को अगर मैं ज्वाइनिंग कराऊं, जैसे आओ, आम, आई, तो ये चीजों को ना मुझे ब्रेक कर करके सिखाना पड़ रहा है, मतलब ऑलवेज ये ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है। अब जहां मैं अब नई थेरेपी ले रही हूँ, वहां वो कह रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। तो आर्टिकुलेशन वाली प्रॉब्लम जब मैंने बोली तो ये बोल, मैंने उनको कहा, पूछा कि ये ज्वाइन कैसे करेंगे हम, बिकॉज ये तो हमेशा ही चलते जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये रिपीटेटिव करके हमें इसको ज्वाइनिंग करानी होगी। देन अगेन रिपीटेटिव हम कैसे कराए, पहले वो कहते हैं कि इसको आप तोड़ो, जब तोड़ के कोई चीज है, ये अगर कोई शब्द बोल रहा है, जैसे वाटर अगर इकट्ठा बोल दे तो वो वाटर को आप रिपीटेटिव करो। तो मैम ये मेरे लिए ओवर टास्क हो रहा है कि ये पहले तो मैं ब्रेक करके सिखाऊं, फिर उसी वर्ड्स को मैं उसको जोड़ करके 3-4 वर्ड को रिपीटेटिव कराऊं। तो आगे चल के मेरे लिए जितने तोड़ के वर्ड, 70 वर्ड मैं उसको बुलवा रही हूँ आज के दिन में तोड़ के, बट वही 70 वर्ड को मुझे फिर से रिपीटेटिव जोड़ के बुलवाना है। तो ये कैसे होगा, ये तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो आगे चलते जा रहा है और एज बढ़ते जा रही है मैम, तो ये कैसे सॉल्व होगा? पहले आप मुझे ये बताओ, आप जो कहते हो कि लैंग्वेज सीखता जा रहा है, तो ये आप वर्ड्स की बात कर रहे हो कि ये वर्ड बच्चा सीखता है और फिर वो भूल जाता है, फिर वापस आपको, ये वर्ड लेवल की बात है या लैंग्वेज के पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट? मैम ये इको की वर्ड है, ये वर्ड्स की वर्ड है, एक छोटे छोटे वर्ड्स। हाँ जी ठीक है। देखो मैम क्या है ना कि उनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है कि हाउ टू जॉइन द सिलेबल एंड मेक द वर्ड। ओके अगर ये जो आप कह रहे हो, दिस इज कॉल्ड वाटरिंग द लीफ, और एक ट्री में कितने लीफ होते हैं वी नेवर नो, एंड यू कैन नॉट कीप वाटरिंग एवरी लीफ, और if you don't water every leaf is not going to sustain. So we say water the root, leaf will flourish itself, right? तो जो आप एक एक वर्ड सिखा रहे हो, यू हैव टू मूव टू द अनदर टेक्निक कि उसकी जॉइनिंग की कॉन्सेप्ट बढ़ाओ। मैंने जो सीवीसी फॉर्मेट बताया था अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, पहले आप उस पे काम करो। क उठाओ, क के साथ का के साथ काक, काक, काग, क के साथ जितने कॉन्सोनेंट है का के साथ सारे लगाओ, फिर वावल बदलो ई, फिर सारे कॉन्सोनेंट लगाओ, फिर ऐसे करके ये थोड़ा टास्क होगा आपको मेक अ कॉन्सेप्ट कि हम 2 अक्षर को कैसे ज्वाइन करके एक शब्द बनाते हैं। तो 2 अक्षर के शब्द करने लगे तो 3 अक्षर के शब्द पे आ जाते हैं। तो जो आप कर रहे हो, it is never going to end type processing. In between, it might happen, child start picking up, but that is not the best way. Water the root, you don't have to water every leaf of it. ठीक है, तो ये वाली जो टेक्निक है सीवीसी वाली, ये आपके लिए बहुत होपफुली अप्रोप्रिएट होगी। मैम मेरे क्वेश्चन है, ये जो आपने बताया अभी चेकलिस्ट, is it possible to get after this session
So one can go through that and accordingly see, because अभी ऐसा कुछ लग रहा है. Sorry, I did not get it. Okay, I was saying कि हमारे पास कोई ऐसी चेकलिस्ट है क्या जिसको फॉलो करके पेरेंट्स ये समझ सके, इवेल्युएट कर सके, सेल्फ असेसमेंट जिसको कह सकते हैं कि Checklist, but again, I cannot give it to you in your, like, as a professional, I cannot hand it over to any of the parents. However, I can suggest technically to go to any of the professionals. Certainly, there is a checklist, there is a test. That's how we do it. We do diagnose it, but it's not at high level because so I told you the symptoms. Maybe I can make the list of symptoms and share with you. yeah, right. It will be just a screening thing, not even standard or something. Just few of the symptom. If any of the symptom relates to your child, it's an indication. It's not the confirmation. Again, making a clarification. Yeah, I understand, but actually the problem here is like, जैसे मान लो किसी बच्चे को अपेक्सिया है, जैसा अभी कुछ लोगों ने बताया कि उनको लग रहा है, आज ये सारी बातें सुनने पर उनको लग रहा है कि है, लेकिन अभी बहुत से होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि ये सिम्टम सारे अपेक्सिया के हैं और उनके स्पीच पैथोलॉजी से उनको नहीं बता पा रही. जैसा आपने कहा ना कि जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को अपेक्सिया है, तो इस वजह से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता रहता है. तो अगर but again I'm telling you, there is always, the diagnosis is always made on the basis of multiple observation. It's just these are the symptom, these symptoms are meeting one particular set of person or the child. There could be a phonological condition, phonological disorder coexisting with that. So again, it cannot be only apraxia. So is the reason we cannot hand you over the test. However, I can make you just the screening kind of something. If you have these of the symptoms, these are the indication your child might have apraxia. right. This is what I can do it. Yeah, right. I mean, at high level, we were looking for some information, so it helped parents to understand. Okay, अब मुझे किसी से बात करनी है, मतलब इस चीज को लेकर के, जैसे हमें मालूम है कि स्पीच आ गई है तो लैंग्वेज नहीं आ पा रही है, मुझे लैंग्वेज वाले से बात करना है. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर लगता है कि नहीं ये इसलिए नहीं हो पा रहा, शायद अपेक्सिया हो. ये ग्रुप में हमारे काफी दिनों से डिस्कशन हो रहा है. तो I don't know, it's a very overlooked problem. It's not only this group. Most of the 50% of my kids have that. Whosoever joined later in the years after having developed the level of language. So it's very overlooked condition, specifically in ASD. क्योंकि उसको बोलते हैं ऑटिज्म के सिम्टम. So I tell you, but again, सारी चीजें होने के बाद you need an expert. Even if you know the child has a problem, you need an expert to help you out. I'll share you the screening list with the declaration that it's just the indication, it's not a test. Right. Yeah. That's fine. I mean, at least it will help us. Like, okay, this is the time now. We need to consult with some consultation on it. Right? At least पता होना चाहिए ना कि बात भी करनी है किसी से. जी. Right. Okay. Next. There was one more person who was, so we are open for only one question. There was one more. Yeah. Who was about to ask something. Yeah, ma'am. This is Sagar. Hi, sir. My son is 5.5-year-old. So पार्श्व जो है वो 5.5 साल का है और उसको ऑटिज्म है and he got diagnosed. अभी उसको जब भी हम सिखाते हैं कुछ वर्ड्स है, कुछ सेंटेंसेस है. So few words, a few sentences and few words he easily like I like pizza. वो आसानी से बोल लेता. Pizza it's difficult but भी बोलता है. But कुछ वर्ड्स है जैसे hello, I love you. I और you वो स्पेसिफिकली एकदम बराबर से बोलता है. Love उसके मुंह से निकलता ही नहीं है. फिर hello की जगह पे hey बोलता है. Hey, hi, not hello. और उसको सिखाना है तो अपने और हमारे स्पीच थेरेपिस्ट भी जो कि उसने क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों में अटेंशन स्पैन कम रहता है तो वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं और वो मुंह के हमारे मूवमेंट की तरफ देख नहीं रहा है. तो उसको ये कैसे सिखाए यानी कुछ वर्ड्स है, ऐसे नहीं कि वो बोलता ही नहीं. He is verbal, but he is not learning lot of words, and it is difficult to
how to teach him. And we go for ABA therapy, we go for speech therapy, and we go for occupational therapy. And the thing is, right now, he's grasping the word, he's able to talk, but few words he's not able to say properly, or he's not at all paying attention to try to say that word. All right. So, do I ask you where do you put up? I'm in Lexington, Kentucky, USA, and my son going to Hobridge. Here we have ABA and speech therapy and occupational therapy. And I was in India, Pune, and there also we went to Sahyadri Hospital and some other therapies in Pune. All right. Okay. So coming back to the point, exclusively when you talk about hello and hey, it could be a cultural variation that could have been the first greeting word. That could have been the first taught greeting word in his life, and it got really very fixed in his communication. So hey could be one of the reason that he's been saying hey instead of hello. We got to understand if he's not able to say hello or he likes to say hey one. Next, coming to the point, like he cannot say few of the words. Again, so does he say law word in other words, law sound in other words? It's only the specific word where he cannot say the word. So I want to know. So if it's an articulation problem, he cannot say that sound at any place. One, like all the time. Any place as in like initial, medial, final. If it's apraxia, he might not say particular word on demand. So we need to get the clear-cut discrimination. He falls in which category. So I'm still not sure about your son specifically because he says lots of words, he doesn't say few of the words. So if it's an articulation problem or it's an apraxia apraxia of speech situation, you got to really get him evaluated for articulation disorder and the phonetic disorder and apraxia, 3 together. So whenever you visit your speech language therapist next time, ask them to have assessment for articulation disorder, phonetic disorder, and apraxia of speech. There you get the clear fine line that which problem he has, or he might have 2 problems coexisting together. Yes? Yeah, they mostly do like the test, like as per CDC in USA. So they do like a MAT and some other test, and they ask us to fill up 4 or 5 pages document and questionnaire, and they observe also like for half an hour, 1 hour if we go for evaluation. And looks like they were telling like it is not related to apraxia, but the problem is like the attention span, and also like he will randomly say the word like, okay, if I say, please open the door. Well, so just clearing me one of my doubts. So does, if for example, he can not say law sound in one of the word, can he say law sound in other word? Yeah. Yeah, okay. So yes. That I wouldn't consider it that he has got articulation problem. Again, the problem remains, could be phonological disorder or apraxia. Certainly, if child is ASD, he or she will have a minimum or maximum amount of attention deficit. I accept the fact that he has attention deficit, but he is learning other words, right? Yes. So why is it restricted to only these many words? Why it is not specifically these many words only. Like say if I use 3-4 word sentences, say Parshva, you want to go to backyard, say please open the door. So he will use please and door. Open, gone. Okay, sir. Okay, fine. Then it is not the apraxia, sir. He has got difficulty with joining the word and making the lengthier sentences. Okay, so you need to work on expansion of sentence. That is part of language exclusively. Even if he has the attention deficit, certainly all the children have attention deficit, and we have to work along with. So you got to work on the expansion of sentence. Sure. Thank you. Most welcome. Yeah.
So हम आज के लिए we are done. Ma'am, can I ask last question? All right. Just a small one. I'm a therapist in Tamanna Special School. I'm a physiotherapist and occupational therapist. So I just wanted to know, as an OT, do I have a play in this apraxia of speech? Can I do anything for the kids to improve their speech and all? Yes, ma'am. See, when it comes to apraxia, dysarthria, aphasia, and all the neurological condition, wherever we include the neurological thing, right? Yes. So it overlaps with the speech therapist and the occupational therapist and the physiotherapist few of the area. So apraxia is something, it overlaps with the occupational therapist, physiotherapist, and the speech therapist. So oromotor exercise and oral stimulation, oral awareness are the three things both of us have to be worked. Okay, The okay. speech therapist and the occupational therapist, or speech therapist, or and the physiotherapist. It is an overlapping area. We both are supposed to work, because you guys are far better in massage and the stimulation thing and the Sensory part and all. Actually, I wanted to know that apraxia of speech is related to a sensory problem also. It's not a sensory problem. However, it's a motor planning difficulty, I tell you, right? So, जब भी motor planning difficulty होती है, तो certainly senses are involved, isn't it? So, for that reason, we both got to work together. Sure, sure, sure. And one more last question. Like ASD में apraxia होता है. Down syndrome also kids have? Yes. Down syndrome and CP and all. Apraxia is very overlooked problem. It can coexist with like many of the numerous situation. Just we need to have a fine lining that is it the apraxia or part of other problem. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Most welcome, Sonia. Most welcome. Yeah, our done for the day. Yeah, I guess we are good for now. And if in case anyone has any questions, so they can connect with us. And I believe. Yeah, they can send you the list of questions. You can share with me, and then we can see how to be worked. Yeah, and I would say this is first time we discussed about apraxia. Before that, at least I was not aware of that. So I told you again, pointing it out. It's overlooked problem, but it's very important. But it's very important because, as you mentioned, and even Sonia, who is physiotherapist, so it looks like यहाँ पे दो या तीन लोगों के combined effort तब जाके एक output आपको मिलता है. It means it's very important to know and कि okay apraxia को आप overlook नहीं कर सकते क्योंकि आप It's an unaccepted condition. Right, because यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि मतलब ऐसा नहीं बड़े शहरों से छोटे शहरों से भी हैं एंड दे से कि हमने 4 साल स्पीच थेरेपी कराया हमने ये कराया बट कोई फायदा नहीं हुआ तो प्रॉब्ली ये कंडीशन that happens it's very evident if your child is 3+ yet he or she has difficulty in expression, sensory integration, क्या कहते हैं उसको apraxia. These could be the most possible reason that your child doesn't have expression. It has to be taken care. Right. So if required, so based on the parents' feedback and questions, what we can do, we can plan another webinar on that. May I give one suggestion, please? Ma'am, can you just in any one of your webinar future, can you just tell us about a brief oral stimulation, oral awareness, so that parents can also practice at home, and being a therapist, I can also learn. See, Sonia, what happens? I was about to just tell Mr. Pramod that it is one thing, oral stimulation and motor massages are not, to be very frank, not to be suggested without any the guidance of okay. Right? Got it. However, basic things we can do that. Which exactly wouldn't harm anyone rather, but might not be effective for the other kid as well. So it has both the sides. Second thing, the apraxia जो होता है ना, ये बात ही हर बच्चे का सिम्टम जो है ना बहुत डिफरेंट होता है. तो हम अगर केस अगर कर दे ना, it's difficult just in one session and tell the parents. It wouldn't be that beneficial. However, I'll try to do that.
बट मैं सजेस्ट ये करूंगी कि एक्सपर्ट से मिलना जरूरी होता है। अगर आप कह रहे थे कि ये नहीं एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, यू आर ओपन टू गो टू अदर पर्सन एज वेल। हर एरिया में कम से कम एक दो तो लोग मिल ही जाएंगे यार, मतलब अगर बहुत सारे नहीं मिले तो एक दो लोग तो No, एक्सेप्ट। it's better to have a basically follow up with other Yes, specialists. there is no harm in that. Your child has got a problem, you got to treat it. You got to take the help of whosoever is capable of doing that. Right. All right. Thank you so much, ma'am, for sharing all this information. It was really very helpful. Most welcome. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Most welcome. Thank you. Okay, Thank you. thank you for bearing with us. Hope it was helpful. If anything needed, you can channelize through Mr. Pramod. Wherever we can, we will guide you. Yes. All right, ma'am. Yeah. Thank you so much. Okay.